great idea. They're encouraging new talent, and our country has great talent. So congratulations and all the best to them. Isha, what does fashion mean to you? You've been, into fitness, into a healthy lifestyle. You've been, totally at it from the beginning of your career, and you look lovely, ravishing as always. So, what's the secret? Thank you. First of all, thank you so much for such great compliments and accolades. Yes, I've always been a fitness freak because I believe in leading a healthy lifestyle, and I think one should treat their body as a temple. So, if you take care of your body takes care of you. Having said that, my fashion statement always is about comfort. I believe in being comfortable because if you're comfortable, and it's only then that you feel confident, and I don't think anybody wants to be uncomfortable. One fitness mantra, any diet you want to tell? Zip your mouth. That's the only fitness mantra, because how much ever you work out, you are what you eat and you become what you cheat. So it's very important for us to prepare, for our future. That's for our, as we age, our body, the metabolism kind of goes slow. So we need to keep preparing for that. When you're young and in your teens and your 20s, it's all fine. But as you age, you feel it. So it's better to prepare when you're young. Do you like to do yoga? Are you interested in yoga? I do everything. There's nothing that I don't do. I do martial arts, I do yoga, I do Pilates, I do all kinds of training. I don't let my body get used to any one kind of training. Isha, you're very strict with your diet also. The little birdie told us that. And we see lovely videos with Rihanna, your daughter. So what keeps you, the motivation, as you say, always for a healthy lifestyle? Well, I think leading a lifestyle is of key essence, and weight loss is a byproduct. If you lead a healthy lifestyle, and when I mean healthy lifestyle, I mean at least an hour of workout every day, some kind of a cardiovascular activity, and eating early. Unfortunately, because of our social commitments and our work commitments, our eating pattern kind of gets affected. But I would still think that if all of us could eat before it's too late, as in about 6:30, 7:30 max. I know you'll all be laughing because 6:30 is a snack time, but 7:30 is the best time for us to finish our dinner, because you should rise with the sun and set with the sun. So that's how your body is made, unfortunately, by God. So if you wake up early and you sleep early and you eat early, as in you finish your dinner by about 7:30, I think you're kind of sorted for life, and then weight loss will gradually, naturally happen. Isha, you're juggling between politics and of course your film shoot and the web series, which is, how do you manage your time? You also, working back in with the office beat. So there's lots that you're doing. Yeah, I think I have kind of learned to balance for better. I think God has given us 365 days a year, 24 hours a day, and I have managed to balance my time. So I think priority definitely is your family, and work fits in whenever work is necessary. Family definitely understands, but sometimes addressing certain commitments, family commitments, becomes priority. So I handle it. I play it by ear. Isha, Ganpati. I think Ganpati and Janmashtami wishes individually we would like to. नमस्कार, मैं ईशा कोपेकर आप सब लोगों को गणपति की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं ईशा कोपेकर आप सब लोगों को गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरिया। इन दिनों वेब सीरीज़ हो रहे हैं। कहाँ से आवाज़ आई? इन दिनों बालाजी वर्ल्ड के लिए एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ, और एक OTP प्लेटफॉर्म के लिए एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ, और 3 फिल्मों की बातचीत चल रही है। मैम, रिसेंटली पाकिस्तान की मिनिस्टर ने प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर से हटाने के लिए किया। आपकी क्या मांग है? आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपको लगता है प्रियंका चोपड़ा को हटाना चाहिए? उनको जो 20 ब्रांड एम्बेसडर थी, UN ने उन्हें अपॉइंट किया था। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Can you please repeat your question a little louder? मैम, उन्होंने 20 के ब्रांड एम्बेसडर, आपको तो मालूम है UN के, तो हाल में पाकिस्तान ने उनको हटाने की मांग की UN को, क्योंकि उन्होंने हमारे आर्मी को अप्रिशिएट किया था, प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया था उनके काम को लेके। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे देशवासियों को
लेके और मेरे देश को लेके कोई भी कुछ भी गलत बोलेगा मेरे नोटबुक में या मेरे लिए वो इंसान देशद्रोही है। तो मैं मेरे देश के साथ हूँ और आई डू नॉट रिस्पेक्ट और आई एम नॉट विद एनीबडी हु सेज एनीथिंग अगेंस्ट द सिटीजन्स ऑफ माई कंट्री और माई कंट्री। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मनु जी, कुछ सवाल आपको? We'll just do a picture at the back. Yes. Any question? Can you get that back? I think that's possible. यहाँ पे आते हैं और आज उन्होंने उनका फैशन लेबल अनाउंस किया है। तो मेरी तरफ से पहले तो बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नए टैलेंट को वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, नए लोगों को चांस दे रहे हैं। इससे देख के सुन के बहुत खुशी मिलती है क्योंकि हम भी कभी नए थे। आपका फैशन मंत्र क्या है? मेरा फैशन मंत्र यही है कि जितना कंफर्टेबल आप रह सकते हो उतना रहो, क्योंकि इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो ही आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और किसी को अनकम्फर्टेबल होना अच्छा नहीं लगता। सो आई थिंक कंफर्ट इज़ माई मंत्र। और जो भी आप पहनते हो उसी को, जो भी आपके पास कपड़े हैं या कपड़े पहन सकते हो उसी को थोड़ा ट्वीक करके इधर उधर करके ग्रेसफुली इफ़ यू वेयर योर क्लोथ्स, आई थिंक वही फैशन कहलाता है। मैं कोई फैशन ट्रेंड को या मैं कोई फैशन ट्रेंड को ऐसे फॉलो नहीं करती। अगर कुछ ऐसे अच्छा लगता है, कुछ नया आया है तो आई विल ट्राई इट। इफ़ इट लुक्स गुड आई विल वेयर इट। इफ़ आई एम नॉट कम्फर्टेबल आई कांट। मैं अनकम्फर्टेबल नहीं रह सकती। न्यू कमर्स को चांस दे रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि नॉर्मली ये होता नहीं है, जो है स्टार उन्हीं कंटिन्यू रिपीट किया जाता है। नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता। मुझे लगता है हर जगह न्यू कमर्स को रिसेंटली हम बोल सकते हैं। हाँ, हर इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को बहुत अच्छा है ना, क्योंकि चेंज इज़ कांस्टेंट। ये प्रकृति है कि प्रकृति का नियम है कि चेंज इज़ कांस्टेंट। तो चेंजेस लोगों को पसंद है, लोगों को नया टैलेंट, नए लोग जो ओल्ड है, जो पुराने हैं, जो स्टार्स हैं, जो सुपरस्टार्स हैं वो रहते हैं, लेकिन नए नए तारे भी आते हैं। फिटनेस पे आप काफ़ी ध्यान देती। रिसेंटली देखा गया आपको दीपिका पादुकोण और आपकी फ़ोटो क्लिक हुई सेल्फी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि दीपिका को मैं काफ़ी अरसों से जानती हूँ। दीपिका और मैं दोनों एक ही मतलब बोथ आर मैंगलोरियंस, और जब भी हम लोग मिलते हैं हम कोंकणी में ही बात करते हैं। हम दोनों एक ही कास्ट के हैं और उनकी फैमिली को भी हम बहुत करीब से जानते हैं बिकॉज वी आर सारस्वत्स। और यही कहना फिटनेस के बारे में, यस, मैं जहाँ वर्कआउट करती हूँ हम लोग साथ में ही वर्कआउट करते हैं एट यास्मिन्स बॉडी इमेज, तो बहुत मिलना होता है सबको। क्या बातें होती है? फिटनेस कितना शेयर होती है? हम लोग बातें ज़्यादा नहीं करते, हम लोग वर्कआउट करते हैं। हम लोग बातें करेंगे तो फिर क्या शेयर होती है, कुछ शेयर कर सकते हैं हमसे? कोई टिप्स नहीं। सी एवरीबडी इज़ डूइंग देयर प्राइवेट क्लासेस देयर, वहाँ पे पिलाटेस है, वहाँ पे वेट्स वर्कआउट्स होता है, तो कोई इतना बात नहीं करता वहाँ पे। सब लोग 1 घंटा हमको दिया जाता है, वो 1 घंटे में वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो बातें बाहर होती है बस। दीपिका के साथ बस फैमिली के बारे में सब, प्रकाश अंकल कैसे हैं, बस इधर उधर की। सिंस आई सेड शी इज़ फ्रॉम द सेम कास्ट एंड आई नो द फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या कहना? चलिए लास्ट क्वेश्चन। ओटीटी प्लेटफॉर्म बारे में क्या कहना? OTP platform, I think digitalization is what's happening. I think it's taken the country by a storm. So and it is the new age. मतलब यही चल रहा है डिजिटलाइजेशन, एंड वी हैव टू मूव विद द ट्रेंड। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि फिल्म्स बंद हो जाएंगे, कभी नहीं। फिल्म्स हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन हमारे जो आप वेब सीरीज़ बोले या OTP प्लेटफॉर्म्स बोले वो चलते ही रहेंगे, क्योंकि जो इंटीरियर्स है सबसे, जो 3 टायर 4 टायर जो सिटीज़ हैं, 5 टायर जहाँ पे शायद थिएटर्स नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पे भी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, वहाँ भी इंटरनेट मौजूद है। और ये लोग अपने टाइम के हिसाब से, अपने वक्त, मतलब आराम से जब भी वो चाहे बैठ के फिल्म्स है जो भी है देख सकते हैं। सो आई थिंक आपकी वेब सीरीज आ रही है फिक्सर, थोड़ा सा जानना चाहिए उसके बारे में। फिक्सर एक थ्रिलर है और एक कॉप स्टोरी है जिसमें मैं एक कॉप प्ले कर रही हूँ। और क्या कूल है हम के बाद ये मेरा
बालाजी के साथ थर्ड एसोसिएशन एक्चुअली। फर्स्ट वाज कृष्णा कॉटेज, देन क्या कूल है और ये थर्ड, लेकिन सेकंड ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे मैं कॉप प्ले कर रही हूँ। तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि जो मेरा पहला जो क्या कूल है हम था, लोग आज तक लोगों को याद है, मेरा कैरेक्टर आज तक पसंद करते हैं, लोगों को आज तक याद है, और मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि लोगों को याद है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।